Hello. Hi, Manish sir. Can you share your video? Can you try sharing your screen? I have two options. Now I'll directly go on share and I'll share my screen because ideally he is the admin at the moment. So when you are not the admin, I will Hmm. have to, share it through my screen. Yeah. Yeah, he's told me to share my video. Right. Okay. Okay. Yeah. Yes, sir. Try sharing your screen, sir. Okay. Shall I click on share screen? Would that be okay? Yeah. Try sharing it. And then once, Okay. Can you see it? hold on. It's loading. Done? It's loading. It's loading. Okay. Can you open something? Sure. I have opened the PPT. No, I can't see anything. Your screen sharing is paused. Now can you see it? Not really. It just says you are viewing. Hold on. Just give me 1 second. No, sir. We cannot see your screen. Because I'm clicking on resume share, but it's not happening. Why is that?
Now see, Yeah, perfect. Absolutely yeah. perfect. Just 1 second. When I'm clicking on the full screen, can you see the PPT at full screen? Just give me 1 second. Yes. Perfect. Yes, perfect. So So when I'm you going, can stop screen sharing so that I can switch to my slide before you start. so I'll pause it now. No, you stop your screen share and then when the Yes, webinar I'll stop says, sharing. okay, perfect. Yeah. Yeah, Perfect. yeah. All right. Thank you. Is this screen visible to you? The career webinar on studies now. Yes. Yeah. Career webinar on Study Smart, FAQs, and the other credits.
Okay, sir, can we start? Okay, let me share my screen. Can you see my screen, sir? Hold on. Yes. Okay, perfect. We can start, sir. Yes, sir, we can start now. Yeah, we can start. Yeah. Okay, Yalimudad everyone. First of all, let me congratulate all of you who have joined in for this webinar. You're joining and investing 60 precious minutes today to understand how to study smart is a very great initiative and first step towards meritocracy, what Mola envisions for all the Jamati youth today. हमारा वेबिनार 60 मिनट्स का होगा और वेबिनार के बिगिनिंग में मैं कॉन्टेक्स्ट और कैसे हमारा फ्लो होगा वेबिनार का वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले 45 मिनट्स के लिए हम प्रेजेंटेशन के थ्रू गो थ्रू करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं, जिस तरह से, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। हम सब जानते हैं कि आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, तकरीबन 85 टू 90 स्टूडेंट्स जुड़े हैं। इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स 10th में हैं, 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं। इन शॉर्ट, हम आज अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम माइलस्टोन पे खड़े हैं। पूरा साल हमने मेहनत की है, आने वाला 1 महीना हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहले 45 मिनट्स हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम पढ़ाई करें कैसे, और लास्ट के जो 15 मिनट्स होंगे, मैं एनकरेज करूँगा आप सब स्टूडेंट्स को कि आप अपने चैट बॉक्स के थ्रू हमें सवाल कीजिए and I will try my level best to answer all your questions. Mani, sir? Sorry, sir? Yeah, before you start, let's just give the audience your introduction. Everyone, our speaker for today's webinar, Mr. Munir Damani, is an executive coach, licensed career counselor, soft skills trainer, and a management professor with 7 years of experience in the education field and 4 years of experience in training and mentoring. To top it up, Munir sir is also the chairman for the Education Board for Pune and is always willing to help solve educational needs of our Jamati students. We're fortunate to have him with us. Without taking much time, I request, okay, Munir sir, you can start with the webinar presentation. We've got a lot of students. We are very eager to hear you out. You can start with your presentation. Sure. Thank you so much, Saif, for that generous introduction. जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हम हमारा प्रेजेंटेशन और अगले 60 मिनट कैसे एक साथ बिताएंगे। पहले 45 मिनट्स, जैसे मैंने कहा, हम प्रेजेंटेशन के साथ गो थ्रू करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम स्मार्टली कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना एफर्ट अगर हम इतना डाल रहे हैं तो हमें एग्जाम में भी वो मेरिटोक्रेटिक ग्रेड्स, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, A+ ग्रेड्स चाहिए। मौलाना आजम इमाम ने हैदराबाद के दीदार में कहा कि आई वांट ऑल माय जमाती स्टूडेंट्स टू स्कोर 100%।
So our aim today will be to understand how can we score an A plus in our exams. 15 मिनट्स में जैसे मैंने कहा लास्ट के, आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स चैट बॉक्स के थ्रू हमें पूछिए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. वी विल आल्सो ट्राई टू मेक श्योर कि अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के कॉमन हैं या जिनके आंसर्स कॉमन हैं, तो आई हैव टेकन द लिबर्टी टू मेक श्योर दैट आई विल क्लब दोज क्वेश्चंस एंड आंसर इट टुगेदर. इन केस अगर कोई क्वेरीज रह जाती है, तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में एक स्क्रीन शेयर की गई थी जहां पे आपको एक ईमेल आईडी फ्लैश किया गया था. इन केस आई एम अनेबल टू आंसर ड्यू टू एनी टाइम लिमिट्स, you can surely message or email your queries on that email id and we will definitely respond to you with your answer. Yes. तो जैसे मैं कह रहा था कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टडी स्मार्ट क्यों और किस चीज के लिए स्टडी स्मार्ट होना चाहिए. सैफ सर ने जैसे बताया कि मैं 7 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ. 2011 एंड 2012 में तकरीबन मैंने अपने क्लासेस और अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू की थी जहाँ पर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. और मेरा फर्स्ट बैच था जब मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा था, और एग्जाम के बाद या एग्जाम के दौरान कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें वो ग्रेड्स नहीं मिल रहे जो हम चाहते हैं. और ये सारे बच्चे अलग अलग ग्रेड्स के थे. जैसे जैसे साल बीतते गए मैं स्टूडेंट से मिलते गया. मौला की दुआ से मैं आगा खान एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू जुड़ा. उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं देश के काफ़ी सारे शहरों में जाके हमारी जमात के नौजवानों से मिला. और वहाँ मुझे बहुत सारे फीडबैक मिलने लगे कि एग्ज़ाम एक बहुत ही बड़ा टेंशन है हमारे जमात के बच्चों के लिए. और इन सारे कॉन्वर्सेशन से 3 सवाल जो है वो कॉमन आए. पहला सवाल था कि बच्चे बोलते हैं कि हमने पढ़ा बहुत है, हम एग्जाम में लिख के भी आते हैं, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट भर रहे हैं, एक क्वेश्चन के 6-6 पेजेस के आंसर्स लिख रहे हैं, लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिलते. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज कॉमन इन ऑल द कन्वर्सेशंस दैट आई हैड. द सेकंड क्वेश्चन वाज कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ, तब मुझे सब याद रहता है. मैं एग्जाम में लिखने बैठता हूँ, दैट इज व्हेन मेरे जहन से, मेरे दिमाग से सब निकल जाता है और मैं ब्लैंक हो जाता हूँ. मुझे पता नहीं मैं कैसे लिखूं. एंड बाय द टाइम मुझे याद आता है, एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है. और तीसरा सवाल जो मुझे कॉमन लगा हमारे बच्चों में कि काफी सारे जमात में हमारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि अगर आप मुझे ओरली कोई कॉन्सेप्ट समझाने को कहो, तो मैं बहुत ही ब्यूटीफुली आपको ओरली समझा सकता हूँ. लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स है. हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिक्स है, कॉमर्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है. ये सारे सब्जेक्ट्स की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है. जैसे हम हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री के आंसर्स में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इन सारे सब्जेक्ट्स की एक लैंग्वेज है. तो बच्चे कहते हैं कि हम ओरली कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, लेकिन जब हमें एग्जाम में लिखने को कहोगे आप, तो हम शायद उतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ये 3 मेन सवाल थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि हमें कुछ तो रिसर्च करना चाहिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि इन 3 सवालों को हम ओवरकम कैसे करें और हम कैसे मेरिटोक्रेसी की ओर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाएं. एंड उसके बदौलत, इस इंस्पिरेशन के बदौलत, इस रिसर्च के बदौलत आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं जो है स्टडी स्मार्ट. तो आज हमारा कॉन्टेक्स्ट ये होगा, आज हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स विल बी कि हम ये कैसे समझे कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है. काफी सारे सवाल हमारे जहन में है कि क्या रात भर पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, क्या लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए या मगअप करना चाहिए, एग्जाम पेपर सॉल्व करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. तो इंशाल्लाह आने वाले 45 मिनट्स में वी विल ट्राई टू इंश्योर कि हम इन सारे सवालों के जवाब दें. जब ये पूरा रिसर्च का हम बात करते हैं कि स्टडी स्मार्ट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर हमें इनको समराइज करना हो, तो ये समराइज हो सकता है इन 5 स्टेप्स में. सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है टू बिलीव इन योरसेल्फ. आप सब लोग बहुत ही यंग एज में साइकिल चलाना सीखे होंगे. आप सब लोगों ने बाइक चलाना सीखा है, कोई लोग कार्स चलाते हैं. आप 30 सेकेंड्स अपनी आंख बंद करके रिवाइंड कीजिए अपनी लाइफ को
और आप सोचिए व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैड टू टेक what was the first step that you had to take in order to get onto that bicycle, in order to get onto that bike, in order to get into that car? हाँ, टेक्निकलिटीज बहुत सारी थी कि हमें पता चलना चाहिए कि साइकिल चलाते कैसे, लेकिन सबसे पहली चीज जो होती है वो है आत्मविश्वास, वो है कॉन्फिडेंस, वो है बिलीफ इन योरसेल्फ। साइकिल चलाना एक सेकेंडरी चीज है, सबसे पहली चीज है हमारे अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं ये साइकिल चला सकता हूँ, हाँ मैं ये बाइक चला सकता हूँ, हाँ मैं ये कार चला सकता हूँ। बिलीफ होना सबसे पहला स्टेप है इन ऑर्डर टू स्टडी स्मार्ट। कई बार हम हमारे माइंड में जब मैथ्स करते हैं या कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट करते हैं तो हम हमारे माइंड को कहते हैं कि यार ये मुझसे होगा ही नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। कई बार हम हमारे माइंड में नेगेटिव चीजें डाल देते हैं, which I would say you should not do it. The first step is to always make sure that you only have a positive mindset. आप जो अपने जहन में अपने आप से बातें कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है तो ट्रस्ट मी, आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान और बहुत ही इजी हो जाएगी। पॉजिटिव माइंडसेट रखना, एक ग्रोथ माइंडसेट रखना कि मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सारे बच्चे करते हैं, सारे बच्चे 90% लाते हैं, 85% लाते हैं, तो मैं क्यों नहीं ला सकता? तो सबसे पहली चीज है कि अपने आप पे विश्वास रखना, अपने आप पे ये बिलीव रखना कि मैं ये कर सकता हूँ। और इसको बैकअप करने के लिए मैं आपको दोनों दलीलें दे सकता हूँ। एक दलील मैं आपको स्पिरिचुअल वाली देता हूँ, जहां पे एक स्पीच में मौलाना हाजिर इमाम ने खुद कहा है that every student, every child in our Jamaat is equally talented. हम सब में वो टैलेंट है कि ना सिर्फ हम पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई करते करते हम मेरिटोक्रेसी को भी अचीव कर सकते हैं। सेकेंड, साइंटिफिक। अगर हम ये साइंस में, न्यूरो साइंस में प्रूव हुआ है कि अगर हम पॉजिटिव चीजें अपने माइंडसेट को बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्शंस भी पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप है बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को पहचानो। कई बार हम कंक्लूसिव हो जाते हैं ये कहते हुए कि मेरे लिए मैथ्स नहीं बना है, मुझे मैथ्स नहीं समझता है। मैं कहूंगा और मैं आप सबको एंकरेज करूंगा कि आप ये समझिए कि उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है। मैथ्स में एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आता? कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम है, फॉर्मूले का प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है? एग्जैक्ट इश्यू क्या है? वो वीकनेस को पहचानना बहुत ही जरूरी है और फिर उसके ऊपर स्लोली स्लोली काम करना। और वो कैसे करना? कि रियलिस्टिक गोल्स रखना। कि अगर मुझे फॉर्मूले नहीं पता है तो हम आगे के पीपीटी में देखेंगे कि आपके घर पे आज माशाल्लाह हम सबके पास हमारा खुद का एक रूम है और हमारे पास एक ड्राइंग रूम होता है। आप उस ड्राइंग रूम पे एक चार्ट पेपर पे सारे फॉर्मूले लिख के चिपका दीजिए और आते जाते जब भी आप फ्री होते हैं आप उस फॉर्मूले की लिस्ट को, आप इस फॉर्मूले की चार्ट को प्लीज गो थ्रू कीजिए, सो दैट यू टर्न योर वीकनेस इनटू अ स्ट्रेंथ। डोंट कंक्लूड इन योर माइंड कि मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं होगा। इत्मीनान से बैठिए, अपने मॉम के साथ बैठिए, अपने डैड के साथ बैठिए, अपने बड़े ब्रदर सिस्टर्स के साथ बैठिए, अपने टीचर्स के साथ बैठिए और फाइंड आउट कीजिए। आप अपना अभी से लेके यूनिट टेस्ट से लेके अभी तक के जो भी मार्कशीट्स हैं उसमें आप देखिए कि कहाँ आप अटक रहे हैं। टीचर से फीडबैक लीजिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स। When you do a positive mindset, when you evaluate your strengths, when you evaluate your weakness, you will get a stronger belief and a motivation to make sure that you achieve the meritocracy. So that's the first step, that is towards study smart, to believe in yourself. Second step और सबसे important step है ये मेरे लिए, getting organized. अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे कि दो लोग हैं। अंदर की तरफ जो मैम बैठे हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, उनके पास एक कंप्यूटर है और कुछ भी नहीं है और एक नोटपैड रखा हुआ है। बाहर एक अंकल बैठे हुए हैं या सर बैठे हुए हैं, उनके पास पूरी फाइल का एक गद्दा भरा हुआ है, पूरी लिस्ट भरी हुई है।
हमारे पास नोटबुक्स भी है, टेक्स्ट बुक्स भी है, डाइजेस्ट भी है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आंसर्स भी है, फिर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिले हैं, हमारे पास पास्ट पेपर्स भी है, हमारे पास क्लास की नोटबुक भी है और हमारे पास होमवर्क भी है। एक साथ हम ये सारी चीजें नहीं लेके बैठ सकते। सबसे पहली चीज है कि आप इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करें। अगर मैं चैप्टर 1 पढ़ रहा हूं अपनी टेक्स्ट बुक से, तो मेरी डाइजेस्ट में भी चैप्टर 1 खुला रहना चाहिए, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी चैप्टर 1 खुला रहना चाहिए। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हम टेक्स्ट बुक से या शुरुआत करते हैं या बिस्मिल्लाह करते हैं, तो आधे में 10 या 15 मिनट के अंतर में हम ये सोचते हैं, अरे मेरा डाइजेस्ट कहाँ है? फिर हम ढूंढने बैठते हैं, या मेरी नोटबुक कहाँ है, मेरे ये आंसर्स कहाँ पर है। इन सारी चीजों में आपका टाइम वेस्ट होता है और मेंटली आप टायर्ड हो जाते हो, और इसके लिए आपका मोटिवेशन ज्यादा देर पढ़ने का खत्म हो जाता है। तो दूसरी चीज, अगर आप अपने आप पे बिलीव कर रहे हो, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो। आपके पास पढ़ाई करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, छोटी से छोटी चीज, पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, चार्ट पेपर, ये सारी चीजें आप साथ में रखें, फिर आप शुरुआत करें। आप सोचे जब आपका बर्थडे आता है और आप अपने बर्थडे की प्लानिंग करते हैं, आप हर चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप पहले प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन देते हैं, फिर आप केक का इंतजाम करते हैं, आप सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। सेम प्रिंसिपल, सेम मेथोडोलॉजी यू हैव टू अप्लाई फॉर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। सारी चीजें एक साथ रखें, अपने टेबल पे रखें, ताकि जब आपको कोई और नोटबुक की जरूरत है, डाइजेस्ट की जरूरत है, 21 मोस्ट लाइकली की जरूरत है, पास्ट पेपर्स की जरूरत है, यू आर वेरी श्योर दैट यू हैव इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहली बात बिलीव करना है, उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज होना है। थर्ड, अब ये ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि सारी नोट्स आप एक साथ रखें, उन नोट्स को भी चैप्टर वाइज आप अरेंज करें। पास्ट पेपर्स भी हैं तो उन्हें आप अलग से रखें, ताकि आप जब एक चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यू गो बैक टू द पास्ट पेपर्स एंड फाइंड आउट इस चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली मुझे पूछे गए हैं, और वो पैटर्न से आप समझिए कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम शेड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। 3 साल पहले पूना के एक कोचिंग क्लास में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो टाइम टेबल दिया गया था बोर्ड्स का, उसमें टाइमिंग लिखा था दोपहर को 3 से 6 का। बच्चों ने वो टाइम टेबल कोचिंग क्लास से लिया और 3 बजे ये सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि एग्जाम टाइम सुबह 11 से 2 का था। तो एग्जाम शेड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और मैं आप सब बच्चों को encourage करूंगा कि आप अपना एग्जाम शेड्यूल स्कूल की वेबसाइट से या स्कूल से पर्सनली लें, क्योंकि स्कूल को पता है कि आपका कौन सा पेपर किस वक्त और किधर है। सेकंड, ये टाइम टेबल आप अपने रूम में प्रिंट करके रख दीजिए, ताकि आपको पता चले, आप बिफोर हैंड रेडी रहे कि आपको कौन सा पेपर कब देना है और उसका टाइमिंग क्या है। This is very, very important. I would request all of you to make sure to take the timetable only from your school or the school website जो आपको स्कूल ने दिया है. Do not take any timetable from Google or any other external sources. This is my humble request to all the students. अगर आज हमारे साथ पेरेंट्स हैं, तो मैं आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एंकरेज करूंगा कि आप कल सुबह ही जाके वो टाइम टेबल का प्रिंट आउट लीजिए और अपने घर के सामने, अपने दीवार पे, जहां पर आप सब देख सकते हैं, घर के सारे सदस्य जब उसको देख सकते हैं, एक ऐसी जगह पे ये टाइम टेबल लगा दीजिए, ताकि हम मेक श्योर करें कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हमारा एग्जाम कब है। इसका दूसरा फायदा होता है कि हमने देखा होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, जब हम 10th और 12th की स्पेसिफिकली बात करते हैं, अमूमन ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में हमें छुट्टियां नहीं मिलती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में हमें काफी सारी छुट्टियां होती हैं, 2 सब्जेक्ट्स या 2 पेपर्स के बीच में। तो हमें कंप्लीट कंफर्ट मिलता है, हमें एम्पल टाइम मिलता है कि हम हमारा छुट्टियों का पढ़ाई का सेशन जो है उसे प्लान कर सकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप टुवर्ड्स स्टडीइंग स्मार्ट इज मैनेज योर टाइम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हर इंसान
छोटा या बड़ा, दिन का 1 घंटा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज इंट्रोस्पेक्ट करें, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू लर्न बेस्ट, विच इज दैट डे, विच इज दैट टाइम व्हेन यू आर मोस्ट एनर्जेटिक, यू आर मोस्ट एक्टिव, आप सबसे ज्यादा जोश में रहते हो, फाइंड दैट टाइम। सेकेंड, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ाई करने का मेथोडोलॉजी क्या है? काफी लोग होते हैं जो पेन लेते हैं और टेक्स्ट बुक लेते हैं और जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे वो लाइंस ड्रॉ करते हैं। काफी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करूं। काफी लोग होते हैं जो एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, फिर एक बार डाइजेस्ट पढ़ते हैं और फिर एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के उसके आंसर्स पढ़ते हैं ताकि उन्हें ये समझ में आए कि आंसर लिखा कैसे जाए। Find it out what kind of activities or what kind of methodology do you want to adopt for yourself which is convenient for you. कितनी एग्जाम्स देनी है? मैंने पहली स्लाइड में आपसे कहा कि काफी सारी छुट्टियां मिलती है क्योंकि वो पेपर हमारे लिए नहीं होता है, हमने शायद वो पेपर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है। सो फाइंड आउट हाउ मेनी एग्जाम्स डू यू हैव टू गिव एंड फाइंड आउट हाउ मच टाइम डू यू हैव। कुछ पेपर्स होंगे जहां पे आपको 3 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, कुछ पेपर्स होंगे जहां पे आपको 1 दिन की छुट्टी है। इस ये सारी प्रायोरिटीज के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि जहां पे 1 दिन की छुट्टी है, वो पेपर या वो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले तैयार करना चाहिए। जहां पर आपको 2 या 3 दिन की छुट्टी है, वो आप सेकंड प्रायोरिटी दो। तो जब हम प्रायोरिटाइजेशन की बात करते हैं, जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए कि एग्जाम में 2 पेपर के बीच में आपके पास कितना वक्त है। नेक्स्ट, फोर्थ, वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्टडी स्मार्ट। मैं अभी आपसे कह रहा था कि काफी सारे लोग जो हैं, हम सब यूनिक है। हम सबका पढ़ने का तरीका और उस पढ़ाई को समझने का तरीका, जिसको हम नॉलेज एक्विजिशन बोलते हैं, जिसको हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बोलते हैं, ये जो तरीका है वो बहुत अलग है। काफी लोग पिक्चर्स देख के बहुत खुश होते हैं, उनके ज्यादा समझ में आता है। काफी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, मुझे सिर्फ सुनाओ, एक बार मैं किसी को पढ़ते हुए सुन लूंगा, एक बार रीड करते हुए सुन लूंगा तो मुझे ज्यादा समझ में। आप फाइंड आउट करो विच इज द बेस्ट वे यू स्टडी। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियोस देखना या आपको पिक्चर्स देखना अच्छा लगता है, आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू, आप सब अपनी नोटबुक लीजिए और एक चैप्टर को आप एक ट्री डायग्राम, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने अलग अलग बॉक्सेस में सब इंफॉर्मेशन डाली, आप ऐसे बॉक्सेस बनाओ कि पहले जहां पर आप कॉन्सेप्ट लिखें, उसके नीचे आप डेफिनेशन लिखें, उसके नीचे आप देखें कि कितने इस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं, और इन सब टॉपिक्स में अगर मेरे पास 12 पॉइंट्स है एक टॉपिक के, इनमें से कितने 6 पॉइंट्स हैं जो इजी हैं और मुझे समझ में आते हैं और मैं वही लिखूंगा। इससे दो फायदे होंगे, एक, कम समय में आप ज्यादा पढ़ाई करोगे। सेकंड, मैं जैसे बता रहा था कि एग्जाम में कुछ पेपर्स हैं जहां पे आपको 1 दिन की छुट्टी है, दिस वुड बिकम योर रिविजन नोट्स। यू विल नॉट हैव टू गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक्स एंड अदर नोट्स। दिस रिविजन नोट will be more than enough to give you the confidence that you are ready for your exam. So study smart में सबसे पहले आपने अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है कि हाँ मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आ गया कि मम्मी ने मुझे फोर्स किया, मैं टीवी देखने के बाद इमीडिएटली पढ़ाई करने बैठ गया, नहीं। हमें मेंटली रेडी होना, हमें अपने माइंड से कहना है कि अब मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ। सारी चीजें जो पढ़ाई के लिए जरूरी है वो हमें एक साथ इकट्ठा करनी है, और फिर हमें समझना है कि मेरे पास वक्त कितना है, और वक्त के हिसाब से मुझे स्मार्ट स्टडी करनी है। जहां पर कोई लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छी कहानियां सुनने के लिए उत्साहित होते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है जब कोई उन्हें स्टोरीज कहता है। देन यू रीड एंड यू स्टडी इन अ स्टोरी फॉर्मेट। आप कोई भी चीज को स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो एंड यू विल सी द बेनिफिट कि आप 10 मिनट से 15 मिनट के अंतर में वो कॉन्सेप्ट यूं समझ जाओगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्टडी स्मार्ट। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हर स्टूडेंट और पेरेंट से कहूंगा कि आप प्लीज जो लास्ट लाइन है उसे पढ़ें। It says what they experience personally and 95% of what they teach to someone else. एक स्टूडेंट 95% चीजें 95% चीजें याद रखता है जब वो किसी और को पढ़ाता है। मैं आपको बहुत ही पर्सनल एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा आप सबसे।
हम सब एक ही फ्रेटर्निटी के हैं, एक ही जमात के हैं। मेरी मॉम जो है वो 10th गुजराती पास है और वो आगा खान स्कूल मुंद्रा में पढ़ाते थे जब मैं 3rd और 4th स्टैंडर्ड मैथ्स में था। मेरे लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट था, मेरे से कैलकुलेशंस बहुत स्लो होते थे, तो एग्जाम टाइम पे मेरे कैलकुलेशंस की वजह से मेरा पेपर छूट जाता। अब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था और मेरी मॉम जो है वो गुजराती मीडियम की। तो मेरी मॉम जब मैं खाना खाने बैठता था या उनके साथ मार्केट जाता था, उनके साथ जमात खाने जाता था और जमात खाने से घर वापस आता था, हमारा घर जमात खाने की 10 मिनट की दूरी पे था, तो मैं मेरी मम्मी के साथ जाता था। मेरी मम्मी मुझे हमेशा पूछती थी, बेटा वो बाइक का नंबर टोटल कर, ऐड कर और मुझे बता कितना होता है। अच्छा बेटा तूने आज ये चैप्टर पढ़ा, इसका फॉर्मूला लिख के बता। तो जब मैं मेरी मॉम को पढ़ाने लगा, जब मैं मेरे दोस्तों को पढ़ाने लगा, I realized that I started remembering 95% of the things in a very less period of time. बहुत ही अच्छी लर्निंग है इसमें से कि अगर आप किसी को पढ़ाते हैं, आपके दोस्त होंगे, जमात में हमारे काफी सारे बच्चे हैं जो एक साथ बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, मैं आप सबको एंकरेज करूंगा कि एक दूसरे को पढ़ाएं। हमने फर्स्ट स्लाइड में जब बिलीव इन योर सेल्फ की बात कर रहे थे, तब हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात की। इट इज दिस विच विल हेल्प यू कन्वर्ट योर वीकनेसेस इन योर स्ट्रेंथ। अगर मुझे पता है कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है और मेरे दोस्त को, मेरे भाई को मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, why don't I teach him English and why doesn't he teach me maths? Both of us will remember 95% of the things that we've taught each other. सबसे बड़ा फायदा, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप एग्जैक्टली याद रखते हैं कि आप किधर गलत गए, और जब वही सवाल एग्जाम में आता है, आई कैन चैलेंज यू फ्रॉम माई 10 years of experience, you will not make that mistake. You will not make that mistake because you consciously remember and tell your brain that yes, I had made this mistake and I had read about it, this is the right answer. एंड आगे जाके हम देखेंगे कि ये 95% जो टेक्निक है किसी और को पढ़ाने की, ये हमारे एग्जाम पेपर में हमें किस तरह से और मदद करे। So I would encourage all the students to make sure that you teach your friends, your brothers, your sisters, whoever is there in your nearby neighborhood, so that you can remember 95%. तो ये बात हो गई हमारे 4 स्टेप्स की। बिलीव करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम मैनेज करेंगे और स्मार्ट स्टडी करें। अब बात आती है एग्जाम के लिए कैसे पढ़ें। हमारे काफी सारे बच्चे हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं और 6 बजे तक लगातार पढ़ते हैं। काफी सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम रात को पढ़ते हैं। हम 10 बजे पढ़ना शुरू करते हैं, हम 2 बजे तक पढ़ते हैं। मेरा आप सबसे सजेशन, स्कूल या कॉलेज पीरियड के हिसाब से करें। व्हाट डू आई मीन बाय स्कूल एंड कॉलेज पीरियड? सेकेंड पॉइंट आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, ऑर्गेनाइज द मटेरियल नीडेड टू बी स्टडीड इन अ 40-minute पोर्शन, टेक अ ब्रेक आफ्टर ईच पोर्शन। क्योंकि आपका ब्रेन 40 मिनट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन ले नहीं सकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एग्जाम का जो टाइम है या आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आप लगातार एट अ स्ट्रेच आवर्स एंड आवर्स ना पढ़े, और आप मेक श्योर करें कि आप पढ़ाई 40 मिनट तक करें और फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर आप वापस आए, फिर आप 40 मिनट तक पढ़ें, फिर आप ब्रेक लेंगे, फिर आप 40 मिनट आए, 40 मिनट तक पढ़ेंगे, फिर आप ब्रेक लेंगे। इससे आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाए। सेकेंड, आप सबको एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक पेपर पैटर्न दिया जाता है और उस पेपर पैटर्न में लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये पेपर पैटर्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई शुरू करने से पहले समझें। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का मार्क्स का वेटेज कितना है। हम सब ने ये देखा होगा कि हम 5 मार्क्स के लिए 15 पॉइंट्स लिखते हैं। जरूरी है? अगर 5 मार्क्स का आंसर है, क्या मैं 8 या 9 पॉइंट्स नहीं लिख सकता? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और ये 40 मिनट के पोर्शन की बात कर रहे हैं, उसमें हमें ये समझना जरूरी है कि जब मैंने पढ़ाई कर ली, क्या मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की कोशिश की कि इस टॉपिक में मुझे क्या पढ़ाया गया, इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स क्या थे,
Hence, I have learnt the following things: when, where, why and how. Very important. 40 मिनट के पोर्शन में हम पढ़ाई करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि हर 40 मिनट के बाद हम एक 5 मिनट का ब्रेक लें, हम एक वॉक करके आ जाए, हम एक ग्लास पानी का पी ले, अगर हमें भूख लगी है तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लें, एंड देन वी कम बैक एंड वी स्टार्ट आवर स्टडीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, आप देखेंगे कि हर एक टेक्स्ट बुक में हर एक चैप्टर पे बोल्ड टर्म्स दिए जाते हैं, जिसे हम मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन कहते हैं. आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हम कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस, ये 80% इस चीज पे डिपेंडेंट और निर्भर होते हैं. प्लीज रिव्यू द बोल्ड टर्म्स वेरी वेल. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आपके पास पास्ट पेपर्स में पता है कि इस चैप्टर में कौन से सवाल आए हैं, आप लिख के उससे प्रैक्टिस कीजिए. और जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन की बिगिनिंग में कहा कि कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री के, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैथ्स के, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इसे आप लिख के रखिए और किसी ऐसी जगह पे लगाइए जिससे आप आते जाते पढ़ते हो. आप सबको याद होगा कि आरईसी में जब हम छोटे थे तब हम जाते थे और हम रोजाना या तो जमात खाने के पहले या तो जमात खाने के बाद एक ही पार्ट, दुआ का जो 6 पार्ट है उसमें एक ही पार्ट हम दोहराते थे बार 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 बार, till the time we perfected that particular part or that particular version or portion of the dua. सेम टेक्निक हमें यहाँ अपनानी है. ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख के हमें चार्ट पेपर पे लगा देना है, ताकि जब बार बार हम उसे पढ़ेंगे तो ये हमारे जहन में, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाए. और जब हम एग्जाम देने जाएंगे, यू विल रियलाइज कि आप कभी भी थकेंगे नहीं मेंटली, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है और आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके हाथ को बोलते जाएगा कि आप लिखते जाओ. और आप देखना, जब आप इमेजिन करते हो इंग्लिश का एसे लिखने के लिए, तो आप सिर्फ शुरुआत करते हो. द हार्डेस्ट पार्ट और द टफेस्ट पार्ट इज टू स्टार्ट. वंस यू स्टार्ट, ideas keep on flowing. That starting in all the technical subjects is the formula, date and definitions. Very important. Now what do we do before an exam? बहुत सारे बच्चे सुबह घाई में निकल जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भी, और जो भी लोग आपके आसपास हैं जो किसी भी कारण आज हमारे वेबिनार का हिस्सा नहीं बन पाए, आप सबको बोलिए कि हैव योर ब्रेकफास्ट प्रॉपर्ली, हैव योर लंच प्रॉपर्ली, हैव योर इवनिंग स्नैक प्रॉपर्ली, हैव योर डिनर प्रॉपर्ली. आप खाएंगे तो आपके अंदर एनर्जी होगा, तो आप 3 घंटे का पेपर भी लिख पाएंगे और 40-40 मिनट के पोर्शन में आप पढ़ाई कर पाएंगे. एग्जाम के पहले या बेड पे जाने के पहले, सोने से पहले अमूमन हमारी आदत होती है कि हम टीवी देखते हैं या मोबाइल पे हम गेम्स खेलते हैं या कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं या सोते सोते हम हेडफोन्स पे गाने सुनते सुनते सो जाते हैं. जिस तरह से हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है और उसे रेस्ट की जरूरत है, उसी तरह से हमारा जहन भी टायर्ड हो जाता है. इसलिए वो जरूरी है कि हम इन सब डिजिटल चीजों से दूर रहें 1 घंटा सोने से पहले, ताकि हम हमारे माइंड को आराम दे सकें. तब कि जब हम सुबह उठे तो ना सिर्फ हम फिजिकली फ्रेश हो, बट हम मेंटली भी फ्रेश हो. वेरी इंपॉर्टेंट. Do not listen to any songs. Do not use any technology, even your mobile phone, your WhatsApp, your Instagram, your Facebook, before going to sleep. Let your brain take rest. नहीं तो क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश होते हैं लेकिन हमारा ब्रेन टायर्ड होता है और हम बोलते हैं मम्मी आज मेरा मूड नहीं है पढ़ाई करने, आज ना बाहर बहुत गर्मी है तो मेरे को कहीं भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा. दिस इज बिकॉज योर ब्रेन इज टायर्ड, योर ब्रेन इज नॉट एक्टिव. प्लीज मेक श्योर यू स्टे अवे फ्रॉम इट. एंड मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एंकरेज करता हूँ, आज से ही आप अपना प्लेज लीजिए कि आप तीनों टाइम का खाना भरपेट खाएंगे. खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं होगा, तो हम पढ़ ही नहीं पाए, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट. दूसरी, हम सब में एक आदत होती है कि जब हम घर से एग्जाम तक पहुंचते हैं, वो 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के
डिफरेंस में जब तक वो हमारा ट्रैवलिंग का टाइम होता है, हम सब पढ़ना चाहते हैं। अवॉइड कीजिए। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। You worked hard for 1 year. You're going to work hard, much harder in the next 1 month, starting from today. You will remember everything. Last minute पढ़ाई करने से आप नर्वस हो सकते हैं, आप एंशियस हो सकते हैं, और जो मैंने तीसरा सवाल या दूसरा सवाल स्टार्टिंग में कहा था कि याद सब रहता है लेकिन एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं। Most of the time it happens because you're trying to read everything, the entire book, the entire portion in the last 15 minutes. Not do it. और एग्जाम के पहले अच्छे से 8 घंटे की नींद करें। काफी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप 8 घंटे की नींद करें। काफी सारे बच्चे हैं, मैंने पूना में भी देखा है, मेरे ट्यूशन में जो बच्चे आते कहते हैं सर हम 12 बजे पढ़ना चालू करते हैं, 3 बजे तक पढ़ते हैं, 3 बजे सो के 6 बजे फिर उठ जाते। नॉट राइट। यू नीड 8 hours of sleep. Please sleep well. Have a good night's sleep so that the next day when you wake up, you know that you are fresh. Very important. Now, how do you take the exams? ये तो एग्जाम के पहले की तैयारी हो गई। अब एग्जाम का दिन आ गया, कल सुबह मेरा पेपर है। सबसे पहले आप एग्जाम के टाइम के 10 मिनट पहले क्लास के अंदर बैठ जाए। अगर आपने वॉशरूम यूज करना है, आपने रेस्ट रूम यूज करना है, तो आप यूज कर लें, ताकि 3 घंटे आप फोकस्ड हो मेंटली और अपना पेपर लिख सकें। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, जो भी चीज की आपको जरूरत है, इवन अ वाटर बॉटल, ये सारी चीजें आप घंटे में हमें एग्जाम में कंप्लीट करना है। दिस इज व्हाट विल गिव अस एन एडवांटेज एंड एज ओवर। प्रायोरिटाइज कीजिए कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। हम सबको पता है कि जमात खाना है 7 से 7:30 पौने 8 तक, और मैं आप सबको एंकरेज करूंगा कि एग्जाम दौरान भी आप 7 से 7:30 जमात करने जाए, ताकि आपका माइंड फ्रेश होगा। आप 2-3 नए लोगों से मिलेंगे, तो आप वो एग्जाम माहौल से बाहर आएंगे तो आपका ब्रेन फ्रेश होगा। देन व्हेन यू गो बैक होम, you will study with a much better and positive energy. Very important. Next, you understand कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी और फेवरेट है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, और कम मेहनत करनी पड़ती है। I would suggest start with those subjects. Then move on to tougher subjects. Make sure you have clear goals कि every day आपको कितना complete करना है। और सबसे important बात, मैं हर बच्चे के साथ ये शेयर करना चाहूंगा और पेरेंट्स के साथ भी, जैसे ही आप अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं, आप प्लीज अपने आप को रिवॉर्ड दो, भले ही फिर वो 5 रुपए की चॉकलेट। When your brain starts getting rewards, your brain becomes more productive. ये साइंटिस्ट कहते हैं। ये वेबिनार के बाद इंशाल्लाह अगर मुझे लारिन बाइमा, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है इस वेबिनार के लिए, अगर मुझे पॉजिटिव फीडबैक देते, I will definitely go out and have a beautiful dinner only with myself to just reward that I did a good job, because that will motivate me to do much better next time. Reward yourself. Take a chocolate. Eat something that you really like. And then you will see you will be positive throughout. जब एग्जाम शुरू हो रही है या एग्जाम आप लिख के आ जाते हैं, एग्जाम का आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, प्लीज मेक श्योर कि एग्जाम में से निकलने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ पेपर्स डिस्कस करना अवॉइड करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ना करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ हमारा गलती हुआ या क्या सही हुआ है। लेकिन ये डिस्कशन करते समय अपने ब्रेन को ये कॉन्शियसली बोलना कि आप सब ने एग्जाम दिया है एंड यू डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर।
wait for the exam results, you will come to know what is your marks. Because कई बार जब हम डिबेट करना शुरू करते, एक तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और दूसरा अगर इमीडिएटली दूसरे दिन पेपर है तो हमारा माइंडसेट जो है वो नेगेटिव हो जाता है. डोंट डू दैट. डोंट डू दैट. डोंट डिस्कस द पेपर. कम बैक, eat your lunch properly, rest for some time, and then according to your timetable start studying. हम सब बच्चे जो हैं आज, और हम सब ना कि सिर्फ बच्चे, हम सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. मैं भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हेडफोन्स लगा के रखे हैं, आपके सामने लैपटॉप के सामने हूँ. एग्जाम में जाते समय प्लीज गाना सुनना अवॉइड कीजिए. आप सब ने ये नोटिस और एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप एक मूवी देख के आते हैं एंड यू लाइक वन पर्टिकुलर सॉन्ग, एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ द थिएटर, फॉर द फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स जो है आपके जहन में वो गाना बजते रहता है. तो क्या होता है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके जहन में वो गाना बज रहा है, योर माइंड इज कंफ्यूज, क्या आंसर लिखवाऊं या गाना लिखवाऊं. So avoid listening to music. Don't listen to the music before going to the exam. Make sure that आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हो फोन पे, एक आप टाइम अरेंज कर दो कि मैं शाम को इस टाइम से इस टाइम ही बात करूंगा, पूरा टाइम बात नहीं करूंगा. जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप फोन को साइड पे रख दें, डिटैच हो जाए पूरी टेक्नोलॉजी से, ताकि आप फोकस करके पढ़ सकें. वेरी इंपॉर्टेंट. नोट्स को बार बार पढ़ें. अगर आप, जैसे मैंने कहा, काफी लोगों को सुनना अच्छा लगता है, तो आपके मोबाइल में एक फैसिलिटी है रिकॉर्डिंग की, उसको आप रिकॉर्ड कीजिए, रीड इट अगेन एंड अगेन, लिसन टू इट अगेन एंड अगेन, एंड यू विल रियलाइज. अगेन आई वुड लाइक टू, आई नो आई एम स्ट्रेचिंग अ बिट बिकॉज माय इट्स ऑलरेडी 9:45, बट आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर एग्जांपल. जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की थी, तो शुरुआत में मैं बहुत ही फटाफट बोलता था, और मेरे पास कुछ भी तैयारी नहीं होती थी. मैं एक स्टेम पर जाके खड़ा हो जाता था और मैं बात करता. धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं मोबाइल पे अपनी बात या अपना आवाज रिकॉर्ड करने लगा, कि मैं खुद ही नहीं समझ पाता था मैं क्या बोल रहा. तो वो रिकॉर्डिंग से मुझे पता चला दैट आई हैव टू स्पीक सॉफ्ट, आई हैव टू स्पीक स्लो, एंड आई हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स. आई कैन नॉट ओनली कवर फ्यू पॉइंट्स एंड देन लीव. This is what is the benefit of recording your own voice. You will realize कि कितने points आपके miss हो. टेस्ट लीजिए, पास्ट पेपर्स बार बार सॉल्व कीजिए, so that you remember what is it that you are missing, and make sure कि जो भी आप मिस कर रहे हो उसको आप मार्कर से मार्क कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट लास्ट टाइम भी आप मिस कर चुके. हर बार पास्ट पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हैं, 3 घंटे का टाइमर लगाइए, एंड सी whether are you able to complete the paper or you are not completing. And if you are not completing it, find out which is the question that took most of your time and what was the reason for that question to take most of the time. क्या आपको points याद नहीं थे? तो revision notes आपको दो चीजें सजेस्ट करूंगा. सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में एग्जाम के बाद, ना कि अभी, एग्जाम के बाद यूडमी करके एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर रहे हैं. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ब्रेन वाइज रेडी नहीं होते तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कर. सेकंड, फोकस ऐसे होना है कि लाउडली रीड कर. जब हम माइंड में रीड करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप एक एक्टर को मूवी थिएटर में डांस करते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये डांस तो मैं भी कर सकती हूँ, बट जब वो एक्चुअली करना होता है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. तो मैं आप सबको encourage करूंगा कि फोकस्ड रीडिंग के लिए कोशिश ये करनी है कि हम लाउडली रीड करें, ताकि हमारा ब्रेन भी रिमेंबर करे. एंड बी अवे फ्रॉम ऑल द टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. अपने रूम में इनफ लाइटिंग रखिए. कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एक लैंप चालू करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ब्रेन को लगता है अंधेरा है तो सो जाना है.
तो आप पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब सो गए, कब आपकी आंख लग गई. सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट इन द लाइट, देयर इज ब्राइटनेस. अगर आप मेरे आसपास देखिए, अभी मैं काउंसिल में बैठा हूँ, लेकिन इनफ लाइटिंग है which keeps me energized, which keeps me more motivated, and which keeps me awake, and that is the only way you can be more focused. राहुल गडिया ने एक क्वेश्चन पूछा है, which is more preferable, reading and learning or writing and learning? राहिल, मैं आपको encourage करूंगा to find out which is the way you learn the best बेटा, क्योंकि हर इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट जो है वो अलग तरीके से, अलग मेथोडोलॉजी से पढ़ता है. जैसे हमने डिस्कस किया कि विजुअल है, ऑडिटरी है, कि अगर आप सुन के पसंद करते हो, आप देख के पढ़ना पसंद करते हो, आप स्टोरीज लिख के पसंद करते हो, आप लिख के पसंद करते हो. हाँ, लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको एंकरेज जरूर करूंगा कि आप आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको याद रहे कि आप कौन से पॉइंट्स लिख रहे हैं और कौन से पॉइंट्स मिस कर रहे हैं. मैं आपकी क्लैरिटी के लिए आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पेपर है, जहां मैंने सारे मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आज चाहता था आज के वेबिनार में आप सबके साथ में शेयर करूं. यस, मेरे पास पीपीटी था, लेकिन ये सारे पॉइंट्स हेल्प मी टू मेक श्योर कि मैं जो कुछ भी प्लान किया हूं आप सबके साथ शेयर करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूं. काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हाउ टू लर्न लैंग्वेजेस, हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड मैथ्स जिसमें आपको पसंद नहीं. मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट. सबसे पहले, टू क्रिएट इंटरेस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेल योर ब्रेन that it is okay, I can do it. If I read it, it's challenging, but I can do it. पहले मैं अपना एग्जांपल वापस से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. मैं पहले 130 kgs का था. All I liked in my life was eating, eating, eating. अगर कभी मैं आपसे मिलूंगा कोई सेशन के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बोर्ड में मैं अकेला हूं जिसकी खाने की डिमांड ज्यादा होती. बट जिस दिन मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यार मुझे वेट कम करना है, आई नो इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट आई हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट. So what I did is I understood that what do I like really most? Do I like yoga and exercise, or do I like Zumba and exercise? Do I like gym and exercise, or do I like walking and exercise? Similarly, आप साइंस में देखें कि आपको किस तरह पढ़ना अच्छा लगता है. आपको पहले रिएक्शंस पढ़ के फिर कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छा लगता है, या पहले आपको रीड करके डाइजेस्ट पढ़ना अच्छा लगता है, या पहले आपको शॉर्ट आंसर्स करना अच्छा लगता है, फिर आप लॉन्ग आंसर्स पे जाते. दैट इज हाउ यू विल क्रिएट इंटरेस्ट. सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी सब्जेक्ट, लैंग्वेज, साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट करना. मैंने आपको मैथ्स का एग्जांपल दिया था. ट्राई टू रिलेट इट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स दैट यू सी. लाइट हम सबके घर पे है. व्हाट डज पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन? मैथ्स हम सबके मॉम डैड या तो बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन है, या तो वो जॉब पे जाते हैं. हाउ डू दे कैलकुलेट? व्हाट इज इट दैट मेंटल मैथ्स कंसिस्ट ऑफ? डिवीजन कैसे होता है? या एक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, उसको मैं अपने घर में यूज कर सकता हूँ. कोई ऐसा एरिया है जो ट्रायंगुलर दिखता है, उसका मैं हाइपो पाइथागोरस थ्योरम देख के मैं हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल सकता हूँ. व्हेन यू रिलेट योर सब्जेक्ट्स टू रियल लाइफ, इट विल क्रिएट मोर एंड मोर एक्साइटमेंट एंड मोर इंटरेस्ट इन योर लाइफ. क्योंकि वो चीजें जो है, अगर आप फिल्म देखते हैं, अगर वो आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करती है, तो आपको वो फिल्म सबसे बेस्ट लगती है. क्यों? क्योंकि वो आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करती है. एंड दैट इज व्हाट इंटरेस्ट यू. फाइंड दैट कनेक्शन ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज इन रियल लाइफ. आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप बहुत बड़ा वर्ड पढ़ लिए, फिलंथ्रोपिक. आप गूगल पे देखिए फिलंथ्रोपिक का मतलब क्या है, और फिर रियल लाइफ में इसको एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कीजिए, जो हम हिंदी में करते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में वाक्यों में लिखें. एंड देन यू विल फाइंड आउट दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड. Second question, Zahir has asked me, how can I write a long answer which always seems smaller? Zahir, मैंने आपको एक स्लाइड बताई थी, I hope you remember, और मैं वापस से आपके लिए दोहराना चाहूंगा, and I would like to reinstate the same thing. अपना लॉन्ग आंसर 3 पैराग्राफ में रखें. पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दे बेटा. सेकंड पैराग्राफ में आप मेन आंसर, जो मेन क्वेश्चन है, उसको आंसर करने की कोशिश करें. एंड थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूजन दें. आंसर जब आप मेन टॉपिक, जब सेकंड पैराग्राफ पे होते हैं बेटा, तो आप मेक श्योर करें कि उसको आप डायग्रामेटिकली, उस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, उसको एक्सप्लेन करने की डायग्रामेटिकली पोजीशन या थोड़ा क्रिएटिवली लिखें, ताकि आपको वो पॉइंट्स भी याद रहेंगे और आंसर भी दिखने में अच्छा दिखेगा और बड़ा दिखेगा. सर, हाउ टू नो व्हाट कैन वी चूज इन फ्यूचर? द ओनली आंसर बेटा आई कैन गिव यू, Nuren, rise, 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 rise.
Beautiful program which is for 10th, 11th and 12th. It is always conducted in all the parts of our country by Aga Khan Education Board of India in the month of April and May, which are the two most important months to decide a career. मैं आपको आज ही encourage करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एग्जाम के बाद सबसे पहले एजुकेशन बोर्ड मेंबर्स का कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए आपके यहाँ पर राइट्स प्रोग्राम कब. सर कैन यू प्लीज आंसर अबाउट द लैंग्वेजेस. बेटा लैंग्वेजेस के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. ग्रामर, वोकैबुलरी एंड चैप्टर्स. ग्रामर मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप बार बार समझने की कोशिश कीजिए कि नाउन क्या है, और मैंने जैसे कहा कि रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए. मुनीर एक प्रॉपर नाउन हो जाता है, चेयर एक कॉमन नाउन हो जाता है. ऐसे आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए एंड मेक इट इंटरेस्टिंग. सेकेंड, वोकैबुलरी के लिए ओनली स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक, ट्राई टू रीड. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक के चैप्टर या पोएम खत्म होने के बाद सेक्शन डी जो होता है वो ग्रामर स्टडी होता है, एंड सेक्शन सी जो होता है वो एक्सटेंसिव या वोकैबुलरी होता है, जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं. उसे बार बार पढ़ें. ग्लोसरी जो है, जिसके वर्ड्स के मीनिंग्स जो हमें दिए हैं, वो आप बार बार पढ़ें ताकि आपको इंटरेस्ट आएगा एंड यू कैन यूज दिस वर्ड्स. एक सवाल और पूछा गया है, बहुत सारे सवाल हैं. एक सवाल है हाउ टू लर्न आंसर्स व्हिच रीड एंड राइट मेनी टाइम्स स्टिल कांट रिमेंबर. बेटा आप ट्राई कीजिए कि एग्जैक्टली आप क्या नहीं समझ पा रहे या क्या आप याद नहीं रख पा रहे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा आंसर जो है वो याद नहीं कर पा रहे हैं. स्नेहल बेटा आप कोशिश कीजिए, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आज आप जब वेबिनार कंप्लीट होता है so you try to make sure that you write one answer, a long answer or a short answer, and then evaluate for yourself. आप खुद टीचर बनिए अपने लिए और evaluate कीजिए कि exactly आप क्या मिस कर रहे हैं. क्या आप दो मेन पॉइंट मिस कर रही हैं या आप इक्वेशन मिस कर रही है. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू आर मिसिंग. मेक अ नोट ऑफ इट इन योर रिविजन बुक एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट, एंड आई एम श्योर दिस क्वेरी विल बी सॉल्व्ड. Sir, when I read at home, I understand everything, but when my paper comes in my hand, I forget everything. Absolutely, Nimi beta. I would suggest इसके लिए आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए. और सबसे बड़ी बात निमी, and I'm seeing this with my 10 years of experience, 7 to 8 years, 7 years in education and 3-4 years in training and mentoring. Believe in yourself. Trust me, believe in yourself. मुझे अपने आप पे विश्वास था, इसलिए मैं इंग्लिश पे थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास है. और ना सिर्फ विश्वास, इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए कि आप कितना लिख रहे हैं, वो इनफ है या ज्यादा लिखना चाहिए. एंड फिर अपने आप पे ये भरोसा रखिए कि आपने जो लिखा है वो अच्छा लिखा है. आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स अगर कभी अनइंटेंशनली, आपके पेरेंट्स भी अगर कभी अनइंटेंशनली आपको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं बेटा, तो आप अपने ब्रेन को नेगेटिव कमेंट्स जाने मत दीजिए. ट्राई टू लर्न व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू. व्हाट इज इट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. पॉजिटिविटी. And I'm sure when you apply the 4 or 5 steps that I've said, which is believing in yourself, getting organized, writing and reading and then practicing it, having a good timetable, studying for 40 minutes and then taking a break and coming back and studying. And सबसे पहली सबसे जरूरी बात निमी, अगर आप एक आंसर अच्छे से लिख लेते हैं, अपने आप को एक चॉकलेट गिफ्ट कीजिए. आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि अच्छी खासी 10-12 चॉकलेट्स ले आए, और जैसे जैसे आप विक्ट्री सक्सेस अचीव करें वो आप ले. राहिला पंजवानी ने मुझसे पूछा है हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स. बेटा द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स इज मेकिंग श्योर दैट यू आर यूजिंग द सब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड्स. बेटा स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक सवाल मुझसे बच्चों ने कॉमनली पूछा था कि आई स्टडी बट आई डोंट रिमेम्बर इट, इज बिकॉज ऑफ राइटिंग स्किल्स ऑल्सो. और राइटिंग स्किल्स के लिए मैं आपको एंकरेज करूंगा कि जो सब्जेक्ट के स्पेसिफिक वर्ड्स है बेटा वो यूज कीजिए. एक ही स्टेटमेंट को बार बार ना दोहराएं, और जो टू द पॉइंट आंसर्स लिखना है वो आप टू द पॉइंट लिखें. जब आप उसको टू द पॉइंट लिखेंगे, काफी सारे एग्जांपल्स देंगे, you will see a transformation in your writing skills. The examiner will be so happy because he will say that not only the concepts are clear but the application of knowledge is also. Yes. जहीर ने मुझसे पूछा है what to refer for MCQs. बेटा टेक्स्ट बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो वर्ड्स टेक्स्ट बुक्स में मैंने कहा बोल्ड लेटर वर्ड्स है, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको मार्क कीजिए, and then I'm sure you will remember it and that will really help you for your MCQs. If we prepare for any competitive exam, then which course is better, online or offline? बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है.
लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि हम इस सवाल पे अलग से कनेक्ट करें, क्योंकि ये जो सवाल है मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। मुझे ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्टडी स्टाइल क्या है। एंड मैं आज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन सब्जेक्ट्स और एग्जामिनेशन, स्पेशली द बोर्ड एग्जाम्स इन माइंड। बट आई प्रॉमिस टू यू that I will try and ask request Larin Baima that if we all, Larin Baima, me and you, हम तीनों अगर कनेक्ट करें, और आई एम श्योर आने वाले एक हफ्ते में हम इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। एंड आई विल गिव यू अ कॉल एंड वी विल डेफिनेटली लेट यू नो how to go, whether you should go for an online competitive course exam coaching or an offline. Inaya Merchant ने मुझसे पूछा how to adapt to subjects we don't like better. You don't like the subjects because of three things better. First, क्योंकि शायद हमने कभी एग्जाम में कम मार्क्स स्कोर किया है, और जिसके कारण हमने ये कंक्लूड कर दिया है हमारे ब्रेन में कि हमारे लिए ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। सो आई गो बैक टू द फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव माइंडसेट। सेकेंड होता है कि हमें वो सब्जेक्ट इसके लिए पसंद नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सारे दोस्त बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट कुछ काम का नहीं और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और मैं स्पेसिफिकली मैथ्स और साइंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है बेटा। आप देखिए कि अगर आप मैथ्स में अपनी पढ़ाई की स्टडी जो मेथोडोलॉजीज है, स्टडी की मेथोडोलॉजीज अगर आप चेंज कर देते हैं, तो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेनिंग इंटरेस्ट इन। आप जब छोटे थे तब आप जो गेम्स खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो अलग गेम्स थे। तब अगर मैं आपसे कहता कि बेटा चलो मैं आपके साथ साइकिलिंग करने जाता हूँ, अगर आप 6 साल के थे और मैं आपको बोलता चलो हम आपको ना कार सिखाते, यू वुड नेवर लाइक इट बिकॉज यू नेवर ट्राइड इट। So you have to make sure to like a subject, you have to make sure that you don't listen to your friends, you don't be conclusive, you make sure that you try differently. देखो अगर हम एक चीज कर रहे हैं, अगर हमें उससे सक्सेस नहीं मिलती है, तो हमें कोशिश करना है कि हम कुछ और करें, कुछ डिफरेंट करें जो आज हमने डिस्कस किया। एंड आई एम श्योर यू विल स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you cannot conclude that you really don't like the entire subject. It may be that you don't like a portion of the subject or a part of that subject. Find that part, find the reason behind not liking it, and I'm sure most of the time इनाया बेटा वो reason होता है कि हमने शायद पास्ट में एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं किया, और वो कभी भी हमारे आगे पॉजिटिव माइंडसेट के लिए डिफिकल्टी या ऑब्स्टिकल नहीं बनना चाहिए। We probably did not do well in the past. It's okay, it's a part and parcel of life. Like I said, you either win or you learn, you never lose बेटा। या आप जीतते हो या आप सीखते हो बेटा। तो अब इससे सीखो कि ठीक है मुझे पास्ट में कम मार्क्स आए, इसलिए शायद मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा पसंद नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ या मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको अलग से पढूं, डिफरेंटली पढूं। आज जो हमने टेक्निक्स डिस्कस की है इसको हम अडेप्ट करें, एंड इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट्स बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर ऑल्सो हाउ टू गेट एन आइडिया ऑफ राइटिंग आंसर्स अप टू द पॉइंट इन बोर्ड्स। बेटा इसका सबसे इजी जवाब मैं आपको दे सकता हूँ कि एक तो आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया होगा कि आंसर्स कैसे लिखना है। यूनिट टेस्ट दिए है आपने, टर्म एग्जाम्स दी होगी आपने, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स दी होगी, आप देने वाले होंगे। तो आपके टीचर्स जो है वो आपको इंसाइट्स देते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे आंसर्स लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं। अमूमन जैसे मैंने कहा एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, 7 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। 10 मार्क का आंसर है तो 12 to 13 पॉइंट्स होना जरूरी है। 3 मार्क का आंसर है तो 4 से 5 पॉइंट होना जरूरी है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा हम लिखते हैं तो आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट एवरीथिंग। लेकिन लेकिन हिस्ट्री में या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट में जब आपको किसी चीज की फीचर्स या एडवांटेजेस पूछे जाते हैं या उसका इंपॉर्टेंस पूछे जाता है, तो जरूरी है कि आप मेन पॉइंट्स अच्छे से लिखें। अगर 10 इंपॉर्टेंस है तो पहले 6 इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो जरूरी होते हैं, बाकी में से आप एक या दो उठा के लिख सकते हैं। एहसास दूध वाला ने मुझसे पूछा हाउ टू लर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इजीली एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। ऐसा आप देखेंगे कि आप जब आरईसी में थे तब भी हम हिस्ट्री पढ़ते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री पढ़ते थे कि इस्लाम कैसे आया, इजिप्ट में कायरो था, फिर वहां से हम इंडिया, एंड एवरीथिंग वी लर्नड इन आरईसी। यू रिमेंबर देयर वर पिक्चर्स इन इट। Similarly, I'm sure there are pictures in your textbook also. Look at those pictures and try to frame a story out of it. And I'm sure you will learn history very easily. Political science, beta, try to understand the facts about our country's politics.
कि हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर लोकल गवर्नमेंट होता है, और इसको आप डायग्राम, जिसको हम ट्री डायग्राम बोलते हैं ना, एक के नीचे एक के नीचे एक, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए एंड पॉलिटिकल साइंस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. एंड ऑल्सो इन द सेकंड स्लाइड आई टोल्ड यू दैट इंपॉर्टेंट फिगर्स एंड फैक्ट्स जो है वो आप चार्ट पेपर पे लिख के रखिए ताकि आप रोज पढ़ सके. पॉलिटिकल साइंस में काफी सारे फैक्ट्स होते हैं कि लोकसभा में कितनी सीट्स होती है, राज्यसभा में कितनी सीट्स होती है, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है. ये सारे फैक्ट्स का आप टेबल बना के अच्छे से कलरफुल स्केच पेन्स पे लिख के चार्ट पेपर पे यू कैन पुट इट एंड आई एम श्योर यू विल लर्न इट वेरी इजी. केमिस्ट्री बेटा, मैं कहूंगा कि आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट के ऊपर. एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आई एम वेरी श्योर दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न केमिस्ट्री एज वेल. Usually it happens that students understand a particular answer and tries to write it in their own words, and see that schools and tuitions deduct marks which results students to turn to cramming method. What can be done for such students? मैं आपको अश्योरेंस देना चाहूंगा, आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर आप अपनी भाषा में आंसर लिखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और कोई भी बोर्ड आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है. उल्टा बोर्ड्स एंकरेज करते हैं कि आप अपनी भाषा में लिखें ताकि एग्जामिनर को और बोर्ड्स को पता चले कि आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग या समझदारी रखते हैं. अमूमन स्कूल्स एंड ट्यूशंस में ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखना बहुत जरूरी है. जैसे हमने हिस्ट्री की बात की तो डेट्स लिखना जरूरी है, तो डेट्स में बीसी लिखना या एडी लिखना ये जरूरी है, इसलिए शायद हमारे मार्क्स कट रहे हों. इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कि आपको मगअप करना है. मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप अपनी भाषा में ही लिखें, लेकिन हैविंग सेड दैट, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कुछ भाषाएं या कुछ शब्दों का प्रयोग करना जो जरूरी है हमारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मैं तो कहूंगा कि ये करना ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बट मैंडेटरी, जिसके ऊपर हमारे मार्क्स डिपेंड करते हैं. तो अगर आप वो समझ लेते हैं, वो याद करके लिखते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड, मैं आपको राय देना चाहूंगा कि जब आप कहते हैं कि आप किसी का डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो डेफिनेशन किसी ने डिफाइन किया है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वर्ड टू वर्ड लिखें. अगर आपको लगता है कि आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना चाहते हैं, तो आई वुड एनकरेज यू टू यूज द वर्ड टर्म्ड रादर देन यूजिंग द वर्ड डिफाइंड. क्योंकि जब आप टर्म्ड की बात करते हैं, देन आई एम श्योर दैट टर्म का मतलब होता है कि आपने कॉन्सेप्ट समझा है लेकिन आप अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं. Sir, when I read at home, I'll go. Can you please repeat website for vacation courses? Udemy better. I will type it in the chat box so that everybody can take benefit of it. Next is uh, just 1 second. हाँ मुझे थोड़ा time लग रहा है. We understand playing sports is important and rejuvenates. However, I believe if I do anything, I do my best. Hence, the sports take up a lot of time. What's your say on that, sir? Bit of prioritization, time management. आपके लिए दोनों चीजें जरूरी है. और आज जैसे कि आपने बहुत राइटली अपने सवाल में बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है कि आप जो भी करना चाहते हो, बेस्ट करना चाहते हो, मेरिटोक्रेसी हासिल करना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रायोरिटाइज कीजिए बेटा. जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसके लिए एक टाइम डेडिकेट कर दीजिए, और जैसे ही उससे आप फ्रेश हो जाते हैं, आप मेंटली रेडी हो जाते हैं, तब आप पढ़ाई के लिए टाइम डेडिकेट कर दीजिए. एंड आई एम श्योर बोथ विल वर्क आउट इन अ कंप्लीट परफेक्ट बैलेंस. Next, in certain subjects we are extremely weak and not able to improve. Try different methodologies in way. सबसे पहले मैं आपको encourage करना चाहूंगा, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, मैं आपको encourage करना चाहूंगा कि मैं वापस से उसी चीज को दोहराऊंगा कि आप कभी हारते नहीं हो. Either you win or you learn. या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो. आपके क्वेश्चन में लिखा है कि आपने काफी सारे डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज किए हैं, तो मैं आपको एंकरेज करूंगा कि आप फाइंड आउट कीजिए कि उन मेथड्स में कौन सी चीजें वर्कड आउट फॉर यू रादर देन फाइंडिंग आउट व्हाट डिड नॉट वर्क आउट. क्या होता है जिंदगी में, हम हमेशा ये चीजें ज्यादा सोचते कि क्या नहीं हुआ. अगर हम ज्यादा फोकस इस पे करें कि क्या मेरे लिए वर्कआउट करता है, एंड देन आई यूज दैट अगेन एंड अगेन, आई रिपीट दैट मेथड अगेन एंड अगेन, आई एम श्योर you will enjoy studying and you will study smart. So my solution, my answer, my suggestion, my encouragement to you is
फाइंड आउट जो भी मेथड्स आपने यूज किया है सर मैम बेटा, उसमें आप फाइंड आउट कीजिए कि आपके लिए कौन सा चीज वर्कआउट किया, and then make a list of it and try doing that more and more, repeat that. कपिल शर्मा जी आज सबसे बड़े कॉमेडियन है हमारे देश में, बट अगर आप उनका इंटरव्यू पढ़े तो उन्होंने कहा था कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठता था ना तो मैं जोक्स करता था, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तू तो जोक्स बहुत अच्छा करता है, दैट मोटिवेटेड है, बिकॉज दैट इज व्हाट ही नोज ही डज बेटर. तो आप देखिए कि उन मेथड में व्हाट वर्क्स फॉर यू, कौन सी चीजें वर्कआउट की है, लिस्ट बनाइए, and then I'm sure that when you apply those things what work for you, you will achieve your dream and you will achieve your goal. Sir, only few days are left for exams. May I know the best time to read? I would suggest कि रात को 12 बजे के बाद आप ना पढ़ें. जैसे कि मैंने कहा कि 8 बजे 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है. हाँ, सुबह का वक्त काफी अच्छा होता है क्योंकि आप ब्रेन फ्रेश होता है, आपका माइंड जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं होता है कुछ चीजों से, आपने कुछ काम नहीं किया होता है, तो आपका ब्रेन बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक होता है. तो मैं आपको एंकरेज करूंगा कि आप सुबह का वक्त जो है वो पढ़े. लेकिन लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि वो रात को पढ़ना चाहते हैं, आई एम वेरी ओके विथ इट, आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. यस, बट प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू स्लीप फॉर 8 hours एंड हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, क्योंकि जब आप 10-11 बजे उठते हो ना बेटा, तो आधा दिन निकल जाता है. देन वो पूरा शाम जो है वो प्रोकास्टिनेशन जिससे हम कहते हैं कि मैं कल करूंगा, और कहते हैं ना फरमान में बोला गया क्या ले क्या रे ना हो. और संत कबीर कहते हैं कि कल करे सो अब करे सो आज. सो मेक श्योर दैट यू यूज योर डे, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि आपके पास ज्यादा समय रहेगा, तो आप अच्छे से काफी चीजें पढ़ पाओगे कम समय. आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू पर्सनली, कैन आई, बेटा वेबिनार का पॉलिसी क्या है वो मुझे लारिन भाई से पूछना पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर अगर ऐसा कुछ है, मैं आप सबको एंकरेज करता हूं कि आप जो हमने ईमेल आईडी दिया है उसके ऊपर आप ईमेल कीजिए, एंड वी विल मेक श्योर. आई डोंट गिव यू अ कमिटमेंट कि हम किस टाइम फ्रेम में आपको रिप्लाई करेंगे, बट येस वी विल ट्राई आवर बेस्ट to answer all your queries. So I'm really unaware of the personal contact, but yes, I will make sure that if you mail it to us, we will answer your queries. Maths papers are very lengthy. How to complete it on time? Past papers solve कीजिए बेटा. Past papers आप solve करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका pace fit हो रहा है. उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से questions easy हैं जिसमें कम वक्त लग रहा है, तो आप वो questions के हिसाब से decision ले सकते हैं एग्जाम में कि आपको कौन से questions पहले करने हैं और कौन से questions बाद में करने हैं. मुझे बड़ी खुशी है और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन 10:15 हो गया है और अनफॉर्चुनेटली मेरा एक कॉल है 10:30 का, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा विच इज बाय अमीन भाई, विच इज any advice for parents. I'm here for my kid who is in class 4 and our exams are starting from Monday. सिर्फ मेरी दो एडवाइस है अमीन भाईजान आपसे. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी बच्ची 4th स्टैंडर्ड में और आज आप स्टडी स्मार्ट अटेंड कर रहे हैं, उससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई एक्सटेंड माय ग्रैटिट्यूड टू यू. और जहां तक एडवाइस की बात है पेरेंट्स की, तो मैं दो एडवाइस देना चाहूंगा अमीन भाईजान पेरेंट्स को. सबसे पहले तो सपोर्टिव रहिए, मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए अपने बच्चों के साथ. एंड मंडे को अगर एग्जाम शुरू हो रहा है तो आप संडे, जैसे कल संडे है, तो आप थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ बैठिए और जो मंडे का पेपर है उसमें आप देखिए अगर आप उसको हेल्प कर सकते हैं रिवाइज करने में, एंड पॉजिटिवली उसको रिवाइज करने में अगर आप हेल्प करते हैं, दैट विल गिव हर एंड हिम a lot of confidence, and I'm sure she will do fantastic in her exam on Monday. Saif sir, I'm aware that there are many questions. Unfortunately, I have a call. So I would like to take That's all these okay. messages on an email ID, and if I can then reply to them on a Monday or Tuesday. Does Sure, that sure, work, sure. Saif sir? Yes, 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 yes. No All problem. right. Thank you so much, Saif sir. Thank you so And much, that's Munir sir, for actually taking the time out for such a webinar. I think it was a brilliant webinar. Our students learned a lot from you. Uh, I'm sure I speak for everyone here when I say that we learned a lot from those slides and from your answers. So thank you so much for taking the time out, and thank you all audience also for joining in on the webinar. We'll see you next time. yeah. And before we end, Saif sir, can I just take 30 seconds? Would that be Sure, okay? sure, sure, sure. Yeah, so two things. Once again, like I said, all the best to everyone. Stay positive, stay energetic, focus on your strengths,
Focus on what you can do, and I'm sure you'll do well in your exams. And before I conclude, I would like to extend my sincere gratitude to Larin Charania Baima, who is the in charge of the webinar initiative at Aga Khan Education Board for India, for giving me this opportunity to come and share my views, my thoughts, and my insights with all of you. Thank you so much, and Yali Mudadadi. Thank you. Yeah, should I end it?